چشموں پر نالوں پر کہیں کوئی ترائی کی جگہ ملے, کہیں تھوڑا سا گھاس ملے تاکہ شاہی گھوڑوں کو زندہ رکھا جائے. تو راستے میں عبدیہ کو خدا کا بندہ ایلیا ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں آج تیرے آقا کو ملنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے ایسا نہ کر, اگر میں جا کر اخیب کو بتاؤں کہ ایلیا تجھے ملنا چاہتا ہے, میں نے اس سے ملاقات کی ہے, نہ جانے تجھے خدا کا روح کہیں اٹھا کر لے جائے اور جب اخیب کو تو نہ ملے تو میرا سر خطرے میں پڑ جائے, وہ میرا سر قلم کرا دے, وہ مجھے قتل کر دے. ایلیا سے کہتا ہے مجھ سے ایسی باتیں نہ کر, میرے سر کو اخیب کے آگے خطرے میں نہ ڈال. لیکن ایلیا کہتا ہے میں ضرور آج اخیب سے ملوں گا. اور جب وہ جا کر اخیب کو بتاتا ہے, ایلیا کی اخیب سے ملاقات ہوتی ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے ایلیا کو دیکھتے ہی اخیب کہتا ہے اے اسرائیل کے ستانے والے, اور ایلیا سے کہتا ہے اسرائیل کو ستانے والا میں نہیں ہوں, اسرائیل کو ستانے والا تو اور تیرے باپ کا گھرانہ ہے جنہوں نے بت پرستی کی ہے, جادوگری کی ہے, خدا کے خلاف بغاوت کی ہے, پچھلی باتوں کو یاد کیا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے ایلیا اخیب سے کہتا ہے تو اور تیرے باپ کا گھرانہ اسرائیل کو ستانے والا ہے, آسمان کو بند کرنے والے تم ہو جو پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہو, جو پھر اسی بت پرستی کو دھراتے ہو, پھر انہی جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو, پھر انہی جسم کی خواہشوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہو اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ کر پاتے ہو. اسرائیل کو ستانے والا تو اور تیرے باپ کا گھرانہ ہے. اور ایلیا نے کہا آج خداوند ایک کام کرنے والا ہے, ایک نیا کام. اور کلام خدا میں لکھا ہے ایلیا نے اخیب سے کہا کہ تو وہ 450 بل کے پجاری جو ایسبل کے دسترخوان سے کھاتے ہیں وہ ذرا کرمل کے پہاڑ پر باہر لے آ. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے کہا پورے اسرائیل کو بھی یہاں پر جمع کر. اور آج خداوند ایک نیا کام کرے گا. اور جب بنی اسرائیل کے سب قبیلے وہاں پر اکٹھے ہوئے اور جو ایسبل کے دسترخوان پر کھانے والے 450 بل کے پجاری تھے وہ بھی جمع ہوئے, تو ایلیا نے سارے اسرائیل سے کہا تم کب تک دو خیالوں میں ڈھاواں ڈول رہو گے, اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ اور اگر بل خدا ہے تو اس کی پرستش کرو. لیکن لوگ اسی طرح جمع تھے, اکٹھے تھے اور ایک حرف بھی انہوں نے جواب نہ دیا. نہ تو وہ خدا کے متبادل بات کرنا چاہتے تھے اور نہ ان بتوں کے پجاریوں کے خوف سے خدا کے لیے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرنا چاہتے تھے. اور کلام خدا میں لکھا ہے ایلیا نبی نے پھر کہا کہ اب ہمارے لیے 2 بھیل لائے جائیں, ایک جو ایسبل کے پجاری ہیں, جو بل کے پجاری ہیں, جو ایسبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں, ایک بیل ان کو دیا جائے اور ایک میں جو خداوند کا نبی ہوں مجھے دیا جائے. اور ہم دونوں مذبح بنائیں اور اس بیل کو اپنے اپنے بیل کو قربان کر کے مذبح پر جلانے کے لیے لکڑیوں پر رکھیں, لیکن آگ نہیں دیں گے. جس کا خدا خداوند ہے, جس کا خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے گا. اور پہلے بل کے پجاری قربانی کریں اور اپنے معبود کو یاد کریں, اس کی شکر گزاری کریں, اس کے آگے دعا کریں, اس سے مانگیں اور اسے کہیں کہ آگ نازل کر کے اس قربانی کو بھسم کر. اور اگر ان سے نہ ہوا تو پھر میں کروں گا, اور جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہوگا. اور ساری جماعت نے کہا خوب کہا ہے, یقیناً جو آگ سے جواب دے گا وہی خدا ہوگا. اور میرے عزیز کلام خدا میں لکھا ہے
वो बल के पुजारी सुबह से दोपहर तक अपनी कुर्बानी पर वो अपने देवताओं की प्रस्तुति करते रहे, नाचते कूदते रहे, उसे बुलाते रहे, दुआएं करते रहे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। एलिया उनको चिढ़ाता है, कहीं तुम्हारा मबूद रास्ते में ना हो, उसे और जोर से पुकारो। उन्होंने और प्रस्तुति, नाचना कूदना और अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया। जंजीरों से अपने आप को वो जख्मी करते रहे और अपने खून को बहाते रहे अपने मबूद के आगे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर उसने कहा, और ऊंची पुकारो, शायद तुम्हारा मबूद कहीं रास्ते में हो, लेट हो गया हो, और पुकारो। वो शाम तक पीटते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, जख्मी करते रहे, पुकारते रहे अपने देवता को, लेकिन कोई जवाब ना मिला। शाम के वक्त एलिया को वक्त मिला, उसने वो जो बनी इस्राइल ने खुदा का मसबा ढा दिया था उसकी तमीर की, और इस्राइल के 12 बेटों से उनके नाम से 12 पत्थर लिए और एक मसबा बनाया, उन पर लकड़ियां रखी और उस बैल को कुर्बान करके उसके ऊपर रखा और कहा कि इससे पहले कि इसको आग भस्म करे, इस पर 4 मटके पानी डाले जाएं। लोग हैरान थे कि आग तो सूखी कुर्बानी को नहीं जला रही, सुबह से 450 बल के पुजारी पीट रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं अपने आप को, और ये एलिया 4 मटके पानी उस कुर्बानी पर डाल दिए। उसके चिगिर्द उसने खाई भी खुदाई थी और उसने कहा, दोबारा करो, 4 मटके और डाल दो। 4 मटके और डाल दिए, 8 हो गए। उसने कहा, दोबारा करो, तीसरी बार 4 मटके और पानी डालो। जब 12 मटके पानी उस कुर्बानी पर डाला गया, वो लकड़ियां, वो गोश्त, वो पत्थर, वो पानी से भगो दिए गए, गीले हो गए। वो जो खाई उसके चुगिर्द बनाई गई थी वो भी पानी से भर गई। तो एलिया ने कहा, ऐ खुदावन इस्राइल के खुदा, आज लोग जाने कि तू ही जिंदा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और तू अपने कदूस नाम की खातर अपनी कुदरत को धार कर। और कलाम खुदा में लिखा है, जब एलिया ने खुदा को पुकारा तो आसमान से आ गई, ना सिर्फ गोश्त को, ना सिर्फ उन लकड़ियों को, ना सिर्फ उन पत्थरों को, बल्कि पानी से भरी हुई खाई को भी उसने भस्म कर दिया। सब कुछ आग चट कर गई और सब लोग खुदा के हमद के तराने गाने लगे, नारे लगाने लगे, हालेलुया कहने लगे। आप सब भी कहें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो सब कुछ भस्म हो गया, आसमानी आग ने सब कुछ जला दिया, तो एलिया ने कहा कि इन 450 नबियों में से कोई भी जाने ना पाए। और उसने उन सबको, कलाम खुदा में लिखा है कि नाले पर जाकर खत्म कर दिया। और बनी इस्राइल ने फिर अपने खुदावन की तरफ रजू किया, जो पिछली बातों को अमल में लाते थे और फिर बुतपरस्त बन जाते थे। उन्होंने अपने खुदावन जिंदा खुदा को मुबारक कहा और कहा कि वही खुदा है जो आग से जवाब देता है। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि अगर हमारे अंदर भी वही पिछले ख्याल जन्म लेते रहेंगे और हम फिर उन्हीं को दोहराते रहेंगे, तो ये हमारे लिए भी बाबरकत बात नहीं होगी। बनी इस्राइल की तरह आसमान बंद हो जाएगा, ना ओस पड़ेगी, ना मी बरसेगा। खुदा गजबनाक हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा
मूसा से जिस तरह कहता है मुझे छोड़ दे कि मैं इनको भस्म कर दूं। मेरे अजीज, अगर हमारी जिंदगी में भी वही पुराने काम होंगे तो कैसे मुमकिन है कि हम खुदा के पसंदीदा हो। खुदा यीशु ने मत्ती की अंजील के 9वें बाब की 16वीं आयत में कहा, कोरे कपड़े का पुरंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। अगर पोशाक पुरानी हो और उस पर जो पुरंद करना है, जो टुकड़ा लगाना है, जो फट गई है, वो नया हो तो पुरानी पोशाक में से और निकल आता है और फट जाती है। खुदा यीशु ने कहा कि कोई शख्स नई में पुरानी मशकों में नहीं भरता, वरना मशकें फट जाती हैं, मशकें भी खराब हो जाती हैं और मैं भी खराब हो जाती है, बह जाती है। इसलिए मेरे अजीज, जब तक हम पुरानी बातों को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करेंगे, जब तक पुरानी रस्मों रिवाज, जब तक पुराने कामों को अपनी जिंदगी से तर्क नहीं करेंगे, हम नए नहीं बन सकते। मत्ती की अंजील के जिस तरह 9वें बाब में हमने देखा है कि कोई पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता। और फिर खुदा यीशु ने एक और जगह पर कहा कि किसी सदागर ने मोतियों की तलाश की और उससे एक बेशकीमत मोती मिल गया, और जो कुछ उसके पास था, जितना सोना चांदी कीमती जवाहरात मोती हीरे, उसने सब बेच डाले और उस कीमती मोती को खरीद लिया। मेरे अजीज, आसमान की बादशाही उस कीमती मोती की तरह है। अगर हम अपनी जिंदगी के ये सारे पिछले काम, ये रस्मों रिवाज छोड़कर अपना दिल यीशु को नहीं देते तो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। इफ्तियों के खत में मुकद्दस पौलुस 4 बाब की 22वीं आयत से कहता है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी, और तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। किस तरह हमारी जिंदगी नई हो सकती है, किस तरह हम नए हो सकते हैं। और तुलसियों के खत में मुकद्दस पौलुस कहता है, लेकिन अब तुम भी इन सबको, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है। मेरे अजीज, बड़े लोग बड़ी दुआएं भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, प्रस्तश भी करते हैं, कलाम की मनादी भी करते हैं, सखावतें भी करते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी जिंदगी में वही पुरानी बातें, वही बदख्वाही, वही हसद, वही झगड़े, वही लड़ाइयां, वही जबान से गालियां बकना, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारी जिंदगी नई हो गई है। हमें नया होने की जरूरत है। और मुकद्दस पत्रस अपने खत में पहले खत के पहले बाब में 14वीं और 15वीं आयत में कहता है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि वो हमसे पाकीज़गी की डिमांड करता है। और पत्रस कहता है, पाक हो इसलिए कि हमारा खुदावंद पाक है। और फिर वो कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि एक बेशकीमत हमारी खलासी गुनाह से, सोने चांदी से नहीं हुई, बकरों बछड़ों से नहीं हुई, बैलों और बर्रों से नहीं हुई। हमारी खलासी खुदा के बेटे यीशु ने
अपना बेशकीमत खून देकर हमें खरीदा है, हमारा इफ्ती हुआ है, उसने हमें गुनाह से छुड़ा लिया है, मूल्य लिया है, हमारी कीमत अदा की है। इसलिए हमें उस पुराने नकम्मे चाल चलन को जो बाप दादा से चला आता है छोड़ना है। मेरे अजीज, मेरे खुदावंद ने, आपके मुनज्जी ने यूहन्ना 3 बाब में निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस शरा कालम कलाम से वाकफियत रखने वाला, डिप्लोमे हासिल किए थे, उसने सेमिनरियां की थी, उसने खुदा की शरीयत को सीखा था और वो लोगों को सिखाता था। लेकिन खुदावंद यीशु ने कह दिया, निकोदेमुस जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जाना तो अलग है। कभी कभी हम बहुत कुछ करते हैं कि कोई आसमान की बादशाही में चला जाए, लेकिन कलामे खुदा ये कहता है, निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई पिछली बातों को याद करना ना छोड़े और नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस कहता है ये कैसे हो सकता है? क्या कोई बूढ़ा होकर फिर दोबारा अपनी मां के पेट से जन्म ले सकता है? खुदावंद यीशु ने कहा, निकोदेमुस तजब न कर, मैंने तुझे कह दिया कि जब तक तू नए सिरे से पैदा न हो तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। पिछली बातों को याद न कर कि आदमी बूढ़ा होकर क्या दोबारा फिर अपनी मां के पेट से जन्म लेगा। खुदावंद यीशु ने कहा, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ी संजीदा बात है, सोचने की है, गौर करने की है, अपनी जिंदगी में इसको लेने की बात है, इस पर गौर करने की बात है कि क्या कोई शख्स जब तक नए सिरे से पैदा न हो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता, तो मेरा क्या होगा अगर मैं अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, अगर मैं अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुई, अगर अब तक मैं पिछली बातों को याद करता रहा हूं, पिछली बातों को याद करती रही हूं। मेरे अजीज, हमें अपने खुदा की ताबेदारी करनी है, हमें उसकी हजूरी में इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि जब खुदा हमें बरकतें देता है, जब वो एक बेटा बाहर होता है फिर दूसरा चला जाता है, जब एक नौकरी करता है दूसरे को भी मिल जाती है, जब पहले हमारे घर में 50,000 आमदन है अब लाख है, अगर पहला एक ठेका सी तो होने दो ने तो फिर भी जे पिछलियां गल्लां नूं याद करते रहना। मेरे अजीज, चर्च में तो कोई शख्स गाली नहीं देता, कोई गाना नहीं गाता, कोई शराब नहीं पीता, और जब फिर कोई हमारा मर जाए तो फिर भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हमारे बच्चों की सालगिरह होती है, जब किसी मां का बेटा ब्याह जाता है, जब किसी बहन के भाई को सेहरा लगाने का वक्त आता है, जब किसी भाभी को अपने देवर के लिए क्या कुछ जो रस्में हैं वो करती हैं, तो क्या इन सारी बातों में कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि अगर पिछली बातों को दोहराएंगे बनी इस्राइल की तरह, जिस तरह मुल्क के मिस्र से निकलने के बाद मूसा पहाड़ पर जाता है और कर पाते हैं, जिस तरह एलिया के दौर में कर पाते हैं, अगर खुदा हमें बार बार पहले से बढ़कर बरकतें दे रहा है और फिर
जब हमारी जिंदगी में कोई खुशी का वक्त आए, जब खुदा हमें पहले से ज्यादा बुलंद करे, सरफराज करे, पहले से ज्यादा हमें वो बरकतें दे, तो क्या मुमकिन है कि हम खड़े होकर कहें कि हम पिछली बातों को याद नहीं करेंगे, जो कुछ इससे पहले किया खुदा के खिलाफ वो नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कलाम आपकी जिंदगी में बाबरकत होगा। एक जो लोग खड़े हो जाते हैं वो कर भी पाते हैं। 2 माह हुए, रावाली में एक शादी हुई एडर जोसेफ साहब के बेटे की, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ उनके घर में, लेकिन इस शादी में उसका बेटा खड़ा हो गया कि हम कोई गाने बजाने का, नाचने कूदने का प्रोग्राम नहीं करेंगे। मेहंदी पर भी इबादत हुई, पादरी साहब ने उसके हाथ पर मेहंदी लगाई और फिर खूब प्रस्तश हुई। रात के 2 बजे तक इबादत होती रही और वो सारा प्रोग्राम इबादत में मुनक्कद किया गया। जो लोग खुदा के लिए खड़े हो जाएं, उनकी जिंदगी में मुमकिन है कि खुशियों के मौका पर भी वो पिछली बातों को याद ना करें, ना दोहराएं, खुदा की दी हुई बरकतों को अपनी जिंदगी में लेकर उसी की शुक्रगुजारी करें और हमेशा उसके साथ लिपटे रहें। और आखिर में मैं एक बड़ी खास बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। इस सवालों को पढ़कर मैं कलाम को खत्म करूंगा। ये मरकज की अंजील के 16वें बाब की 16 और 17 आयत है, जिसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ये किसी मिशन की मुनादी नहीं है,